So this is part 6 now of election and representation. ठीक है? Okay, so let me try and share this video with you now. हम लोग बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है? चलो. The chief election commissioner presides over the election commission, but does not have more power than the other election commissioner. दो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है? माने एक को हमने चीफ बना दिया और एक और है, दो है, लेकिन दोनों की पावर सेम है. The chief election commissioner and the two election commissioners have equal power to take all decisions relating to election as a collective body. They are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers. It is therefore possible for ruling party to appoint a partisan person to the commission who might favor them in the election. This fear has led to many suggest that this procedure should be changed. Many persons have suggested that a different method should be followed that makes consultation with the leader of the opposition and the CGI necessary for the appointment of CEC and election commissioner. अब यहाँ पर देखो एक तो क्या हो रहा है, बोल रहा है जब इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग अपॉइंट करते हैं तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है, ठीक है? माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक आदमी को चूज करते हैं और प्रेसिडेंट को बोलते हैं और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पार्लियामेंट में किसी पार्टी को मेजोरिटी होगा तो वो तो अपनी पसंद का आदमी को चूज करेंगे, isn't it? फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग का करंट पार्लियामेंट है उसमें 318 सीट है बीजेपी का, ठीक है? तो बीजेपी जिस आदमी का नाम रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, तो वो तो बीजेपी के फेवर का हो सकता है ना? इसी के लिए एक तो नया सजेशन ये आ रहा है कि आप एक काम करिए, एक ऐसा बॉडी बनाइए जिसमें ऑपोजिशन पार्टी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो, रूलिंग पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी हो. तीनों को मिलाकर एक तो पार्टी बनाइए जो वो लोग इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, तो सबके लिए न्यूट्रल रहेगा. समझ में आ गया? अच्छा आइडिया है. लेकिन the constitution ensures the security of the tenure of CEC and election commissioners. They are appointed for a 6-year term or continue till the age of 65, whichever is earlier. तो 6 साल के लिए या उनका एज 65 हो जाए, whichever is earlier, उतना टाइम तक उनका अपॉइंटमेंट फिक्स रहता है, ठीक है? चलो इसको रीड करो सृजन. स्पेशल मेजोरिटी. Special majority means 2/3 of those present and voting, and simple majority of the total membership of the house. Let us say you have passed a resolution in your class with a special majority. Imagine further that your class has a total student present of 57. On the day of voting, only 51 students are present and 50 students participated in voting. When would you say that resolution has been passed with special majority decision? स्पेशल मेजोरिटी कब क्या होगा? जब 2/3 ऑफ 50 अपन को लेना पड़ेगा, है ना? जो प्रेजेंट है और वोटिंग है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी. माने हुएवर इज देयर उसका 2/3. और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? जब टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3, ठीक है? तो अगर हम 57 का 2/3 लेंगे तो वो सिंपल मेजोरिटी होगा. लेकिन जो लोग वहां पे प्रेजेंट है इलेक्शन के टाइम पे और जो वोट करने के लिए रेडी है उस टाइम पे, उसका अगर हम करेंगे तो उसका हमको 2/3 को स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं. समझ में आ रहा बात को? जैसे इस केस में क्या होगा? इस केस में स्पेशल मेजोरिटी कब होगा? जब 2/3 और 50 होगा. 2/3 ऑफ 50. क्यों 50? क्योंकि एक आदमी बोल रहा है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वोटिंग में. और सिंपल मेजोरिटी कब होगा? 2/3 ऑफ 57. समझ में आ रहा बात को? दैट इज सिंपल मेजोरिटी. समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. Yes. ये बीच में तो था, यहां से पढ़ना है. The CEC can be removed before the expiry of the term by the president if both house of the parliament make such a recommendation with a special majority. ठीक है? This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuse to favor it in election. The election commissioner can be removed by the president of India. The election commissioner of India has a wide range of functions. चलो एक एक करके दोनों एक एक फंक्शन रीड करता जाओ फटाफट. नंबर 1 स्टार्ट विद विशाल. It supervises the preparation of up-to-date voters list. It makes every effort to ensure that the voters list is free of errors like non-existence of names of registered voters or existence of names of those non-eligible or non-existent. हाँ, वोटर्स लिस्ट में गलत नाम नहीं होना चाहिए. जो लोग का डेथ हो गया उनका नाम हट जाना चाहिए. तो एकदम सही लिस्ट होनी चाहिए, वोटिंग सही होना चाहिए. ठीक है, चलो नंबर 2 सृजन. It also determines the
also determines the timing of the elections and prepares the election schedule. The election schedule includes the notification of elections, dates from which nominations can be filed, last date of filling nominations, last date of scrutiny. So scrutiny क्या है? स्क्रूटनी वो लोग चेक करता है कि वो लोग जो भरा है सारा फॉर्म वो ठीक है, माने उसमें वो लोग सारा डिटेल्स अपना राइट दिया है, प्रॉपर्टी का सब कुछ दिया है, अपने बारे में बताया है, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उनका जॉब क्या है, सारा कुछ वो लोग फाइल करता है जो कि चाहिए उन लोग का एज पर लीगल प्रोसीजर, और वो लोग चेक करता है कि एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, तभी वो लोग उसको फाइनली वो लोग अलॉट करता है माने इलेक्शन लड़ने के लिए, अदरवाइज वो लोग उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। Last date of withdrawal, last date of polling, and date of counting and declaration of result. हाँ, तो ये सारा डेट फिक्स करते हैं कब से इलेक्शन होगा, कब आपको नॉमिनेशन भरना है, कब तक आप भर सकते हैं, कब आप रिमूव कर सकते हैं, कब हम उसको स्क्रूटनी करेंगे, तो ये सारा काम इलेक्शन कमिश्नर का है। चलो विशाल, पॉइंट नंबर 3। During this entire process, the Election Commission has the power to take decisions to ensure a free and fair poll. It can postpone or cancel the election in the entire country or a specific state or constituency on the ground that the atmosphere is vitiated and therefore a free and fair election may not be possible. The Commission also implements a model code of conduct for parties and candidates. It can order a pre-poll in a specific constituency. It can also order a recount of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just. तुम देखा होगा अभी कोविड के टाइम पर बंगाल में इलेक्शन था, काफी झमेला हो रहा था, क्योंकि अगर आपका कोविड के टाइम पे इलेक्शन होगा, ये तुम दोनों का वीडियो ऑडियो क्यों बंद हो गया, विशाल एंड सृजन, आई कांट सी यू, क्या हुआ, भूख लग गया तुम दोनों को क्या, हाँ, हाँ सर। तो क्या है, वीडियो क्यों बंद हो गया, तुम लोगों को कितनी बार मना किया वीडियो बंद करने के लिए ऐसे बीच में, मैं बंद कर दूं वीडियो बीच में अपना, उतना आराम मत करो ना, सर बीमार है, तुम लोग दोनों बीमार हो, 1000 बार बोला है कि बीच में माइक बंद करते हो, वीडियो बंद करते हो, मेरे को इरिटेशन होता है, क्या मजा आता है भाई वीडियो बंद करके, आगे रीड करो। मैं क्या बोल रहा था, कोविड के टाइम पर बंगाल में इलेक्शन था, तो इलेक्शन कमिश्नर को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उन लोग को पता है रैली होगा तो लोग जमा होंगे, जो लोग जमा होंगे इट्स नॉट गुड फॉर कोविड, तो उन्होंने मना कर दिया, बहुत सारी रैलीज को बैन करा दिया, बहुत कुछ उन्होंने किया, कंट्रोल किया उसको, वो चाहते तो इलेक्शन को बंद भी करा सकते थे, कभी कभी इलेक्शन में लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, कभी कभी इलेक्शन में तुम देखता होगा बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, बॉम्बार्टमेंट हो जाता है, तो वो लोग वहां पर री इलेक्शन करा सकते हैं, कभी कभी लगता है कि जो काउंटिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ईवी का मशीन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो फिर उसको वहां पे रिकाउंट कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पावर विद द इलेक्शन कमीशन हैज, इलेक्शन कमिश्नर हैज अंडरस्टूड, उनको ये सब करना पड़ता है जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कौन रीड करेगा, The election commission accords recognition of the political parties and allots symbols to each of them. हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है वो भी इलेक्शन कमिश्नर ही क्या नाम है जज करते हैं कि कौन सा आपको लेना है, दे गिव यू 3-4 चॉइसेस, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट रीड। The Election Commission has very limited staff of its own. It conducts the election with the help of administrative machinery. However, once the election process has begun, the Commission has control over the administration as far as election-related work is concerned. During the election process, the administrative officers of the state and central government are assigned election-related duty, and in this respect, the Election Commission has full control over them. The Election Commission can transfer the officers or stop their transfers. It can take action against them for failing to act in a non-partisan manner. हाँ, तो तुमको पता है कि एक तो क्या काम है कि इलेक्शन कमिश्नर का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता है, उनके पास परमानेंट गाड़ी भी नहीं होती, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को यूज करते हैं अपना काम कराने के लिए, तुमने बहुत बार देखा होगा कमीशन से पहले इलेक्शन कमिश्नर बहुत सारा गाड़ी को वो लोग प्राइवेट गाड़ी को पकड़ लेते हैं, बोलता नहीं जब तक ड्यूटी नहीं होता आपको इलेक्शन कमिश्नर के लिए काम करना पड़ेगा, तुमने देखा होगा ऐसा बहुत बार, ठीक है, क्योंकि उनके पास परमानेंट गाड़ी नहीं है, क्योंकि दैट विल कॉस्ट अ लॉट, है ना, परमानेंट स्टाफ का बहुत पैसा लगेगा, और हर टाइम तो इलेक्शन होता नहीं है, तो वो लोग बेकार का बैठ के क्या करेंगे, इसी के लिए जब इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर से वो लोग काम करवाते हैं, ठीक है, चलो फटाक Yes, से, ओवर द इयर्स
Over the year, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its power to ensure fairness in the election process. It has acted in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral sanctity of process. the electoral process, हाँ. The record of Election Commission also shows that every improvement in its functioning of institution does not require legal or constitutional change. It is widely agreed that the Election Commission is more independent and assertive now than it was till 20 years ago. This is not because the power and constitutional protection of the Election Commission have increased. The Election Commission has started using more effectively the power हाँ, it always had in the Constitution. तुम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिन्होंने टीएन सेशन का नाम नहीं सुना है, ठीक है. टीएन सेशन का तुम लोग, अगर तुम लोग को गूगल में जाके सर्च करना, उनके बारे में पता करना. इट्स, मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ. जितना भी पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, आप लोग टीएन सेशन सुन लिया नाम, टीएन सेशन, ठीक है. वो आए थे जब वो इलेक्शन कमिश्नर बने, तब उन्होंने दिखाया पूरे इंडिया को कि इलेक्शन कमिश्नर का पावर क्या होता है. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं था कि उनके पास पावर था नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत पावर दिया था, पर किसी को पता ही नहीं था कि इतना पावरफुल हो सकता है. उन्होंने आके जो नाच नचाया ना पॉलिटिकल पार्टीज को, देखने लायक था. उन्होंने दिखाया कि इलेक्शन कमीशन कितना डेंजरस हो सकता है. वो किसी मंत्री का, किसी नेता का बात नहीं सुनते थे, वो वही करते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को बहुत स्ट्रांग बनाया है. इसी के लिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, टीएन सेशन के बारे में जरूर पढ़ना तुम लोग, ठीक है. उन्होंने बहुत गेम चेंजर है वो. अब तुम देखेगा इसमें लिखा भी है कि 20 ईयर्स पहले हमारा इलेक्शन कमिश्नर उतना स्ट्रांग नहीं था, पर आज बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज अब उन्होंने अपना पावर को रियलाइज कर लिया है कि उनके पास कितना पावर है, ठीक है. चलो, Yes. क्या In नाम the बताया past मैंने? 50 TN session. चलो. In the past 50 years, 14 Lok Sabha elections have been held. Many more state assemblies elections and by-elections have been conducted by the Election Commission. The Election Commission has faced many difficult situations such as holding elections in military-affected areas like Assam, Punjab, or Jammu and Kashmir. It has also faced the difficult situation of having to postpone the election process midway in 1991 when the ex-Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during the campaigning. In 2002, the Election Commission faced another critical situation when the Gujarat Assembly was dissolved and the election had to be conducted. But the Election Commission found that unprecedented violence in that state had made it impossible to hold free and fair elections immediately. The Election Commission decided to postpone election to the State Assembly by a few months. The Supreme Court upheld this decision of the Election Commission. चलो, Check your proud. उसको छोड़ दो. इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ये कितना है अभी, कितना चैप्टर बाकी है ये? सर अभी है बस इतना ही सही है. इतना सही. ये लास्ट टॉपिक है सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म. चलो इसको कर लेते हैं. इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस इन आवर इलेक्ट्रॉल, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स माने वोटिंग सिस्टम, ठीक है. चलो सृजन, रीड फटाफट इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स. लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. No system of election can ever be perfect, and in actual election process, there are bound to be many flaws and limitations. Any democratic society has to keep searching for mechanisms to make the election free and fair to the maximum, with the acceptance of adult suffrage, freedom of contest elections, and the establishment of independent election commission. India has tried to make its election process free and fair. The experience of the last 50 years have given rise to many suggestions for reforming our election system. The Election Commission, political parties, various independent groups, and many scholars have come up with proposals for electoral reform. Some of these suggestions are about changing the constitutional provisions discussed in this chapter. एक सेकंड. तो हम लोग का जो ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अवर्स टू चेंजेस. अगर कहीं चेंज किया जाना चाहिए बेटरमेंट के लिए तो जरूर करना चाहिए. और कोई भी चीज का सक्सेस होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, कोई भी चीज तभी सक्सेस होती है जब आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो, ठीक है. तो ओवर द इयर्स बहुत सारे सजेशंस हम लोग के आए हैं. जब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, जब आप लोग थोड़ा पढ़ लोगे पॉलिटिकल साइंस को, आप लोग को भी बहुत सारे सिस्टम में चेंजेस करने का मन करेगा. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको चेंज अच्छा लग रहा है तो करना चाहिए, ठीक है. तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो आने चाहिए, जैसे सबसे पहला बात तो तुम लोग को यही है कि एफपीटीपी होना चाहिए कि पीआर सिस्टम होना चाहिए. इसके ऊपर काफी डिबेट हो सकता है ना. तो बहुत जन ने बोला है कि नहीं एफपीटीपी नहीं हो कि पीआर सिस्टम होना चाहिए. तो इफ देयर इज अ चांस इट कैन आल्सो हैपन, ठीक है. तो ये डिबेटेबल है.
और अगर ऐसा अच्छा होगा तो उसको किया जाएगा। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 1 एक एक करके पॉइंट पढ़ना चालू करो। ठीक है, एक सृजन एक विशाल। लेट्स स्टार्ट विद विशाल। Our system of elections should be changed from the FPTP to some variant of the PR system. This to ensure that the parties get seats as far as possible in proportion their votes they get. गुड सजेशन, यू कैन थिंक अबाउट इट। नंबर 2 सृजन। There should be a special provision to ensure that at least one-third women are elected to the parliament and assemblies. ये ऑलरेडी इसके बारे में काफी सीरियसली बात चल रहा है, और हम लोग ने तो क्या नाम है पंचायत ये सब में तो ये हो भी गया है, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये भी अच्छा एक तो सजेशन है। चलो नंबर 3 विशाल। There should be stricter provision to control the role of money in the electoral politics. The election expenses should be paid by the government out of a special fund. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इतना रुपया खर्च करता है बैनर लगाने में, पोस्टर लगाने में, प्रचार करने में, कितना खर्चा होता है पैसा। इतना से तो हम गरीबी दूर कर ले ना। तो कितना रुपया आप खर्च कर सकते हैं इलेक्शन में, इसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अभी तो ये कंट्रोल होना चालू भी हो गया, काफी इसके ऊपर प्रोविजंस आ गए हैं। लेकिन ये एक अच्छा सजेशन है कि आप फालतू का पैसा वेस्ट मत कीजिए, पब्लिक के ऊपर काम कीजिए ना, पब्लिक का ही पैसा अल्टीमेटली होता है। चलो नंबर 4 सृजन। Candidates with any criminal case should be barred from contesting elections, even if their appeal is pending before a court. अब ये बात सुन के तुम लोग सब बोलेगा हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें कितनी बार ये भी होता है कि लोग फॉल्स प्रोसिक्यूट कर देते हैं ना, एलेज कर देते हैं, है ना। माने कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है उसके, ऐसा तो क्या होगा, अच्छा आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर एक तो केस डाल दो। ठीक है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ये तो हो सकता है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है, प्रूफ गिल्टी नहीं होता है, तब तक हम लोग उसको गुनाहगार नहीं मानते। तो ये सजेशन अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम यही है कि ऐसे तो कोई भी किसी भी अच्छा मयंक सर इलेक्शन में खड़े हुए, लोगों को लगा नहीं मयंक सर अच्छे आदमी है, इलेक्शन जीत जाएंगे तो उनके ऊपर केस कर दो। 4-5 केस कर दिया, इलेक्शन से बाहर हो गया, ये तो गलत है ना। तो फिर हम लोग को इस चीज के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिस कैन बी ट्रिकी एट टाइम्स। ओके, चलो 4th नंबर पॉइंट। There should be complete ban on the use of caste and religious appeals in the campaign. डेफिनेटली इन इंडिया तो ये होना चाहिए। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हाँ, हम लोग सेक्युलर है। क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, आज तबियत बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऊपर से तुम लोग गुस्सा दिला देता है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग एक सेक्युलर कंट्री है, तो ये सब तो बिल्कुल हमारे पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। There should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner. डेफिनेटली इसी के लिए तो काम किया जा रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये, और हम लोग अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं आया है, बट वी आर ट्राइंग टू गेट टू इट। चलो नेक्स्ट। यस विशाल। These are but a few suggestions. There is no consensus about these suggestions. Even if there was a consensus, there are limits to what the law and formal provision can do. Free and fair election can be held only if the candidates, the parties, and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic मेरे हिसाब से competition. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होगा जब सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ये चीज को अपना धर्म मान लेंगे कि उनको अपने सारे कलीग्स को समझाना है पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, जब भी कभी भी मीटिंग हो तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग खड़े होकर बताएं कि क्या सिस्टम है, कैसे होता है, और सबको एनलाइटन करने का काम उनका है। और वो लोग को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स लोग को आस्ते आस्ते करके पॉलिटिक्स में जाना भी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स कोई खराब चीज नहीं है। ठीक है, वी जस्ट नीड द राइट काइंड ऑफ पीपल टू बी देयर। अगर आप लोग वहां से जाओगे तो डेफिनेटली इंडिया का जो फ्यूचर है काफी चेंज हो जाएगा। इसी के लिए मैंने तुम लोगों को बोला यू पीपल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ सृजन। ये कैसे गधा की तरह मुंह काय बना रहा है सृजन, कभी ऐसे मुंह कभी वैसे मुंह, ऐसे लग रहा है वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर है। मुंह में क्या है? मुंह में सर कुछ है नहीं, दांत में कुछ फंसा हुआ है और वैसे गर्दन में आज बॉल आकर लगा है, दर्द है। हाँ, तो ऐसे मुंह बना रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, तुम बॉलिंग कर रहा है, हम लोग का विकेट नहीं गिर रहा तो तुम गुस्सा हो रहा है। नहीं सर, चलो जल्दी से रीड करो। बॉल लगा है गर्दन में। बॉल लगा है? तुम क्रिकेट खेल रहा था? हम्म, बॉल लगा कैसे? फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए? क्रिकेट का बॉल फुटबॉल खेल रहा था। क्या? क्रिकेट का बॉल से फुटबॉल खेल रहा है, I-10 बॉल से। वाह, चलो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। आगे पढ़ो जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी पढ़ो। Apart from legal reforms, there are two other ways of ensuring that elections reflect the expectations and democratic aspirations of the people. One is, of course, the people themselves have to be more विजिलेंट। have to be more vigilant, more actively involved in political activities. But there are limits to the extent in which ordinary people can engage in politics on a regular basis.
Therefore, it is necessary that various political institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning as a watchdog for ensuring free and fair elections. हम लोग तो चैनल खोलेंगे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लोग के लिए, जिसके अंदर हम लोग एकदम डिबेट करेंगे आराम से, ठीक है। जब हम लोग का 11 खत्म हो Yes. जाएगा और हम लोग और थोड़े होशियार हो जाएंगे, देन आई प्रॉमिस कि हम लोग बैक बेंचर्स का एक पॉलिटिकल साइंस का चैनल खोलेंगे और हम लोग अपना एसोसिएशन बनाएंगे। वी विल ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन इंडिया। इसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड आई मीन इट, अंडरस्टूड। क्योंकि जब तक हमारा गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी पॉलिटिक्स स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी कंट्री स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोग को एक बात और बोलता हूं कि आप लोग जब ये चैप्टर पढ़े तो हर चीज के बारे में डिबेट करो क्लास में, खूब बात करो इस सब चीज के बारे में, ठीक है। जितना ज्यादा बात करोगे, जितना लड़ो मत, ठीक है। नहीं समझा? तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग में और बाकी लोग में फर्क है। तुम लोग लड़ते हो कोई रिजल्ट के लिए, ठीक है। तुम लोग लड़ते हो खाली अपनी बात रखने के लिए नहीं। अगर सामने वाला तुम्हारा ओपोनेंट का कोई अच्छा पॉइंट है तो उसको समझो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त लड़ना है। और अगर प्रॉब्लम हो तो मेरी पोयम है डेजिडराटा, उसको समझ लो, उसको देख लो। अगर डेजिडराटा पोयम को देख लोगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करेंगे, ठीक है। खूब मजा आएगा। Okay, sir. Bye, sir. बाय।